हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर जो है किंग्स, फार्मर एंड टाउन, अर्ली अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी देखा जाए तो कक्षा 12वीं का इतिहास का है। अध्याय जो है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम यहाँ विचार विमर्श करेंगे और हर एक पहलू पर जो है नज़र दौड़ाएंगे। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की एक लड़ी रहेगी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से रहेगा। हम कुछ क्वेश्चनों को यहाँ करेंगे जो पॉइंट व्यू पे रहेगा और साथ में ये क्वेश्चन जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और यहाँ पर क्वेश्चन जो रहेंगे काफ़ी महत्व रखेगा। लेकिन दोस्तों, आपको पता है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important chapter here, kings, farmer and town, early states and economics. That's important chapter here. Class 12 CBSE NCERT history here. The next question is arrive is the most important here. Critical exam the limitation of the inscriptional evidence in the understanding political and economical history of India. You know that that's an important question for this exam view, and many times come to the exam here. The critical examine to the limitation of the inscriptional evidence in the understanding political and economical history of India. Inscription are important source now history, but there are a contain limitation of inscription. There is a following here. First of all, here several thousand of inscription were discovered, but not all them were disappear is translated. You know that thousand of inscription, but not a translated here. That is the problem here. And generally inscription were composed in a passage of king and patrons. Example, Prayaga Prasastri was the composed in a Sanskrit by the Hari Sen. The court of poet Samudragupta. That's important here, and the same point for the all questions. From this inscription, we know about the university's administrative capability of the king. Samudragupta, who was described as equal to different dynasties here. That's important. From the inscription, we know that about the generalist administrative capability of the king Samudragupta, who was described as equal to different dynasties here. The context of the inscription variably projected. There is a perspective of the person who is commissioned it, and but it's not recorded that what we are consider political and economically significant fact of that period. No, that is important. Not recorded what we are consider a political and economical significant fact that a period. For example, routine agriculture practice, the joy and sorrow of the common people were not mentioned in this inscription. That's an important point here. The routine agriculture practice, the joy and sorrow, common man and common people were not mentioned in this inscription. That's an important point here. History is not only to histories of kings, it includes different social group and even is a marginalized to the section of our society. You know that's important. History is not only to histories and the of king. There is include a different social groups even to the
marginalized section of our society. From mid-12th century, historians become more interested in the political and economical change of society. They in which a different social and group emerge. That's important 12th century here, and this lead to the fresh investigation of all sources. And this is a inscription has its own limitation to the interrupt political and economical history of India. That's important point here. Let's see next. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे समक्ष चैप्टर आया है क्लास 12वीं इतिहास के सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत। और यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने में अभिलेखित साक्ष्यों की सीमाओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। और आपके समक्ष त्रिपान स्टडी सेंटर ने इसको पॉइंट व्यू से लेके आया है, तो ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है याद करना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पॉइंट व्यू ही नज़र आती हैं। और पॉइंट याद करना किसी भी बच्चों के लिए बहुत आसान रहता है, एक दो बार समझिएगा ऑटोमेटिक सब माइंड में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन साफ है कि भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने में अभिलेखीय साक्ष्यों की सीमाओं का हमने आलोचनात्मक परीक्षण करना है। देखा जाए तो इतिहास जानने के लिए शिलालेख महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, लेकिन शिलालेखों की कुछ सीमाएं होती हैं, वो शिलालेख काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि शिलालेख से ही हम इतिहास को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कई हजार शिलालेख खोजे गए हैं, देखा जाए तो कई हजार शिलालेख हमें मिले हैं, लेकिन इनमें से सभी को पढ़ा या अनुवाद नहीं किया जा सका है। सबसे बड़ी बात जो है हड़प्पा कल्चर की सभ्यता के जो हमें शिलालेख मिली है उसको ना तो पढ़ा जा सका है, ना अभी तक समझा जा सका है। कहते हैं ऐसे ही हमें कई हजार शिलालेख मिले हैं और ना ही इसको अनुवाद किया गया है और नहीं पढ़ा जा सका है। आमतौर पर शिलालेख राजाओं और संरक्षण की प्रशंसा में लिखे जाते थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो प्रयाग प्रस्थ की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षसेन ने संस्कृति में की थी, और यहाँ पर हरिसेन ने समुद्रगुप्त की जो है प्रशंसा में ये जो है प्रयाग प्रस्थी जो है उसने किताब लिखी थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो देखा जाए तो आमतौर पर जो ये शिलालेख जो है राजाओं के और संरक्षण की प्रशंसा में लिखी जाती थी, तो इसमें वास्तविकता से बहुत दूर थी, इसमें सच्चाई की कमी थी, इसमें बहुत बातें जो है झूठी भी इसमें सम्मिलित की गई थी। इससे शिलालेखों से हमें राजा समुद्रगुप्त की आदता, उदारता, प्रशंसनीय क्षमताओं के बारे में पता चलता है, जिन्हें विभिन्न देवताओं के बराबर बताया गया है। यानी देखा जाए तो इनमें से मैंने कहा ना कि पहले ही जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, उस राजा के विशेषता के बारे में ही बताते हैं। और यहाँ पर भी इसमें हमें यही बात देखने को मिला कि इसमें जो है राजा समुद्रगुप्त की उदारता, प्रशासनिक क्षमता के बारे में पता चलता है, और साथ में ये भी पता चलता है कि ये राजाएं अपने आप को देवता के बराबर बताया करते थे और अपने आप को देवता साबित करने में लगे हुए थे। और ये सब हमें सिर्फ उन लिखी हुई बातों से पता चलती है जो शिलालेखों में हमें मिली है। शिलालेख का संदर्भ निरपवाद रूप से उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है जिसे वो बनवाया था। ये बात भी साबित होता है कि शिलालेख में जिस व्यक्ति ने लिखवाया है वो अपनी बातों को ही यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर शिलालेखों में व्यक्त किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें निरपवाद रूप से उस व्यक्ति की दृष्टिकोण ही प्रस्तुत की जाती है जिसने इस शिलालेख को बनवाया था। ये बहुत बड़ी आलोचना के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन जैसे हम उस समय काल के राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण तथ्य मानते हैं, उसे दर्ज नहीं किया गया। बहुत से शिलालेख हैं जिसमें सही बातों को जो है दर्ज नहीं किया गया। इनमें उन्हीं लोगों की बातें रखी गई है जिन्होंने उसको खुदवाया है, इसलिए उस समय के राजनीतिक आर्थिक रूप में महत्वपूर्ण तथ्य जो है शिलालेखों से गायब है। उदाहरण के लिए इन शिलालेखों में नियमित कृषि पद्धति, आम लोगों के सुख दुख का भी उल्लेख हमें कहीं भी नहीं मिलता है। कहते हैं ऐसे बहुत शिलालेख हैं जिसमें आम गरीब लोगों के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, ना उनके सुख के बारे में मिलता है, ना उनके दुख के, और ना ही कृषि पद्धतियों के बारे में हमें कोई जानकारी मिलती है। तो ये शिलालेख जो है एक तरह से जिसने लिखवाया है वो अपनी प्रशंसा में ही लिखवाया है। इतिहास केवल राजाओं का इतिहास नहीं है, ये बात सच्चाई है। इसमें विभिन्न सामाजिक समूह और यहाँ तक कि हमारे समाज के
हाशिश पर रहने वाले वर्ग भी शामिल थे। इतिहास बात सही है कि इतिहास सिर्फ राजाओं के ऊपर आश्रित नहीं है, उसमें रह रहे आम व्यक्ति, आम जनजीवन के ही होती है। लेकिन जितना भी शिलालेख हमें मिले हैं सब राजाओं के गुणगान में ही मिले हैं। कोई आम व्यक्तियों की गरीबी, सुख दुख और उनके व्यापार, उनके जो है कृषि के बारे में हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ आलोचनाओं के रूप में देखा जा सकता है। देखा जाए तो 20वीं सदी के मध्य से इतिहासकारों की रुचि समाज के राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन, उदाहरण के लिए विभिन्न सामाजिक समूहों को भरने के तरीक़ों में अधिक हो गई है। यानी 20वीं शताब्दी से जो है भारतीय इतिहासकारों का रुचि जो है राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनों में अधिक हुई है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं जब से इनको इतिहास में रुचि हुई है तब से बहुत सी बातों की खोज हुई है और बहुत से साइट भी हमें मिले हैं जहाँ पर बहुत सी सभ्यता जो है नष्ट भी हुई है। तो देखा जाए आज भारत के लोग इतिहासकारों में और लोगों में इसके लिए बहुत दिलचस्पी बढ़ गया है। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं देखने को मिला है, जिसके बारे में हमारा इतिहास अभी पूरी तरह से लिखी नहीं गई है। इसे पुराने सूत्र के नए सिरे से जांच हुए हैं और इस संबंध में भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की व्याख्या करने में शिलालेख की अपनी कुछ सीमाएं होती है। देखा जाए तो बहुत से ऐसे शिलालेख हैं जो नष्ट भी हो गए हैं, जिनको अभी तक पढ़ा भी नहीं जा सका है, और बहुत से ऐसी शिलालेख हैं जो राजा अपनी प्रशंसा में लिखवाया है। तो यहाँ पर शिलालेख की अपनी सीमाएं हैं और हमें अभी शुरुआत से जांच कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है एग्ज़ाम व्यू से। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण सेशन की मदद करना चाहते हो, विश्वास है, तो जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। अगर आप दूसरे बच्चों को केयर कीजिएगा तो आप भी कमेंट अगर कीजिएगा तो अगर कोई भी वीडियो के लिए तो वो भी त्रिपाण सेंटर अग्रसर रहेगा बनाने के लिए। अगर आप कीजिएगा त्रिपाण सेंटर के स्टडी के लिए अच्छा कार्य तो आपके लिए त्रिपाण सेंटर हर समय अग्रसर रहेगा। कहते हैं दोस्तों एक हाथ ताली कभी नहीं बजता है। आप त्रिपाण सेंटर को आगे बढ़ाइए, आपके लिए त्रिपाण सेंटर हर वीडियो यहाँ उपलब्ध कराएगा। जो भी कक्षा में होइएगा उस कक्षा का वीडियो आपको यहाँ नज़र आएगा। और देखिएगा एक बार प्लेलिस्ट पे जाकर तो आपको शायद सभी वीडियो मिल भी जाएँ, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसलिए शेयर की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो और भी वीडियो आपको प्राप्त हो, जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है चाहे समझ आए चाहे ना आए वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर अक्षर भी आपको नज़र आता है, वो भी पॉइंट व्यू, तो ये भी लिख लीजिएगा। तो ये भी आपके लिए एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और एग्ज़ाम में आज तो पता ही है एग्जामिनर का जो है रूल रेगुलेशन चेंज हो चुका है, वो हमेशा पॉइंट व्यू पे ही नज़र डालते हैं, इसलिए त्रिपाण सेंटर आपके लिए है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।